नमस्कार, स्वदेश चार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। स्वदेश चार की शुरुआत आज के सबसे बड़े इंटरव्यू के साथ दिखाते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया की सीधी बात और जानते हैं बजट की बारीकियां, समझते हैं अमृतकाल का बजट प्लान। It's been a long, busy and a hectic week for you. You've still accommodated this interview request, so thank you very much for that. You're welcome. Madam Minister, this year's budget has struck all the right chords. For economy which was reviving because of pandemic, this budget will ensure that the acceleration to growth continues. We were looking at your budget speech, and this is the fascinating part. The four most used words in your this year's budget speech were development, invest, infra and growth. So is it fair to say that is the crux of this year's budget? Yes, actually, because we were clear from the very start for the preparation of the budget that last year's policies will continue. It is in the interest of the economy to give stability in policy, and it is in the interest of the economy to sustain the growth which people have somehow pulled through and, amidst all odds. I repeat the admiration I have for the people of India who have gone through terrible odds. Every family has been affected. Every friend has suffered. So it's not a time where anyone has escaped untouched by this pandemic. And at this time, therefore, it was important for the government to continue the role of being supportive. Even if private investment is taking a time, a while to come into this whole scene, government will have to spend and pull the economy forward. And gradually as we do this, we expect the private investment also to come out in its full force. And unless we give this sustained support, it would be a great letdown and a costly letdown, which we did not want, and we don't intend to also. After all, if people can do so much for the economy, why would we want to? Therefore, yes, impetus on public investment, capital expenditure, impetus on infra, because that has a great multiplier. I was comparing the multiplier of per rupee spent, it's more than 2.95, whereas the revenue would just be less than 1. And so infra, and then looking at growth being the only way through which we can level or bridge the difference which exists between one set of people who are successfully conducting their businesses and others who are struggling. So to bring in that factor which Prime Minister Modi has been always saying, even as a Chief Minister, that unless development is actually full and kicking, you're not going to be able to bridge the differences in the well-being of the people. So yes, that's the focus. Well, you've been asked this question before, that government expenditure is slow. That's largely because of pandemic impact of second wave. For those who are questioning government's ability to spend because of the higher capex count, are they underestimating Prime Minister's vision on Gati Shakti? Because that large engine, if they start working in, all the expenditure would be diverted in a very productive manner. That's right. It's also a question of drawing the best synergy that you can. Because in India, roads have always been made. There are ports existing much before, for the last 40, 50 years. There are also manufacturing zones in different parts of the country. There are no interlinkages between them. Okay, you started a manufacturing center here, but for it to reach the port or some kind of a airport or seaport from where they can sell their products, or even closer to getting them closer to the raw material heads, or in the neighborhood having a residential place where their children can study, or even to go to the neighborhood in the nearby area, a city, commuting between the place where they are in the manufacturing zone to the city. So these kind of gaps in connectivity of different kinds
And everything is there but no internet of today. Earlier it used to be phones. So that's exactly what the PM Gati Shakti is now bringing in, a framework into which all of this can be fitted and made sure that your investment in making a, let's say, Mac manufacturing zone is not going to be headless, tailless, connectionless. That's the benefit PM Gati Shakti will bring in, into which the national infrastructure pipeline will get into. The monetization of assets also will come into play. So if there was a public asset, why wouldn't we want to use it to build a metro in it? But building a metro there, will it help? These kind of a holistic approach to the process of making India which can meet the challenges of India at 100. And that's why planning for the Amrit Kaal. Why did I have to lay a 25-year plan? People do keep asking me this. This is why. Because what you're looking at, infrastructure is not built for today, for just for tomorrow, and day after it disappears. What you build today will have to last 100 years. So given that India now is a leader in terms of UPI payment, online transactions, something we don't talk about it, but since we have the opportunity of getting a rare interview with you, I'll extend the question to, do you think India will now have a lot of global negotiating power in data protection in terms of patents? Because we've not enjoyed that kind of an, advantage, if I may use the word. Yes. In the digital world, the India stack, whether it's payment, I announced Desh, a particular stack of... Global and India stack have to talk now. That's right. For which global policies will also have to be framed. I think India will be at the high table, determining how digitization of economies can happen. We've already shown it in very many ways, not just in digital payment, also on eShram, also looking at education, medical help, telemedicine. All this is possible. Now you seem to have very many operations happening, surgeries happening with so many different consultants from all over the world. These are not possible without our progress which is made in digitization. And optical fiber is also taking all these to all the remotest part of the country. And when you're looking at the global, it's very heartening to know that very many developed countries too are nowhere near what we've achieved. Nowhere near in terms of the versatility with which we've extended digitization to various walks of our life. And all of them are serving not just 1,000, 2,000, 1 billion citizens are benefiting from it. These are things which we have to take abroad. And people are asking us to tell them if we can share these. What was CoWIN after all? Yes. Many countries really thought if you could give a digital, our citizens going in international airports are showing through a mobile the certification that 2 doses are over, whereas many of them are pulling out papers even today. So yes, I think we have a very big role to play, a futuristic one at that, and our youth are doing brilliantly well in rapidly changing the language with which, systems with which, and also the ways in which we can handle digital. Our startups are contributing a lot towards this era. It's having a play in agriculture, it's have a play in space technology as well. So we will be definitely pioneers in deciding, framing policies and helping the world in seeing how best this can apply to all of us. The fact that there's a committee which you've already announced with your budget for startup, what is the idea behind that committee? Because the Prime Minister 2 years ago did mention that the government would be open to considering overseas listing for startups. Is the committee made with that? The committee which I've announced now is more for the private equities and venture capitals. For them, there were so many different issues which they wanted us to address. They had a video conference with the Prime Minister. They also met me, and we thought therefore that area, because also with all the existing limitations, they have come out so much that today the startups in India were in the process of becoming unicorns. We're able to mobilize resources purely from our own venture capital, from our own private equity. So we thought we should sit and see what best they would want us to do so that they can be even more robust. Madam Minister, today the bond market or the 10-year paper closed at 7%.
And the view is that markets are nervous about the government borrowing program, inflation is coming back. Is that fear justified? How would you address that fear? Markets have their own readings, and I wouldn't question them. They were, after all, they sense it, and they have been successful in most of their assumptions and the way in which they sense things. But even with that said, I would say I don't expect them to be so much worried about it. They shouldn't be, because we are doing it in a very transparent process. And also, there are so many other revenues, non-tax and better improved collection, all of which will add to our tax buoyancy and a non-tax collection as well. So, whilst we announce the borrowing, and whilst we also are conscious of the ways in which we are readying ourselves, it shouldn't fluster them. The fact that no decision has been taken on India's bond inclusion in the global index, from the ministry standpoint, is that still up for consideration, or that since no decision has been taken, it's a shut case now? No decision has been taken is not a shut case. Okay. We would say it's a shut case if it is. I'd like to draw your attention to the disinvestment number. Air India, very tough disinvestment. Sincere compliments, it has gone through. The divestment process in India has changed now. It's no longer selling via ETF. It is no longer selling dribs and drabs or pseudo disinvestment. Has the divestment process in India changed? And can I use, instead of divestment, it should be privatization now? Why hadn't I said this in the budget last year? It's just that it's now getting endorsed. Yes. I used the word privatization in the last budget, and I was grateful to the media which received it very well, because those of you who do business channels do understand what it actually means. And no, the process is on. We are going ahead with it. There is no change. But it is a truth that the systems in the government do consume a lot of time in complying with the existing rules. Air India was a classic case, a complex case, a layered case, where we had to do all the necessary tying up and be accountable. I think others would be less consuming of time. So it should go as per plan, which was announced last year in the budget. The indications what we've gone is LIC IPO will hit the market very soon. Will LIC IPO hit the market with a 5-10% stake, and will the government stake stay there? Because in some of the other government listings like Coal India, NTPCs, in subsequent years, the stake has come down. What are your thoughts there? Well, at this stage where, the red heading prospectus is likely to be announced, it wouldn't be good for me to comment or speculate on it. Just wait for the document to be out. You'll know about LIC. But as I said, our approach is what we have announced in the budget of last year. We continue with it. Through this budget, I've wanted to provide the continuity, the stability. Crypto. I know you've been asked this question, so let me rephrase my next question slightly differently. Sovereign in its right has put a transaction tax. That's the right of a sovereign. But is this also an indication by the sovereign that they are trying to curb speculation? Well, if it eventually leads to cutting down on speculation, it could be one of the collaterals. But we are going there to make sure that if it is happening, we need to know if there's any profit being made, and rightly, profit also will have to pay a share to the government exchequer. So we've gone in there. But if it results in lack of or reduction in speculation, well, we've seen the ethos of 18 hours rise with India, and Indians are now changing their asset allocation. SIPs have started. Indians are investing in equities. They are betting on Indian entrepreneurs. Gone are those days where FIs were the only investors. It's a very proud moment for all of us. That's right. Look at the number of demat accounts, net ones, unique ones. Is the finance ministry happy with that? Or you think it's a bubble, or you would like to warn retail investors? No, the retail interest in the stock market is a healthy sign. Our youngsters are finding that there are other ways, other than keeping it in fixed deposit. There are ways in which they can engage, however risky it might be. However risky, but if you were a discerning investor, you're able to see which are the companies doing well, which are run transparently. Board-driven processes are being
guiding the companies, they're able to see and therefore invest in such companies, and I welcome that. Final question, Madam Minister. Your speech was relatively short, but on words, you've really made a powerful impact. Was that the intent this time? Yes, certainly. Last year too and this year too, I have myself written the speech. I've spent a lot of time in making sure that the words matter and that it should not be a haranguing speech that people think, oh my God, why can't she end? I wanted it to be conveying what is there, and I've spent time writing last year's and this year's speech myself. This is one question which has come on our social media. The Ministry announced that you've kindly agreed for interview request, which is that, can you please check with Madam Minister, does she check stock markets, bond yields, or even value of rupee on a daily basis? Do you do that? Don't my answers reflect it? Well, they do. Really appreciate your time, Madam Minister. Thank you Good luck very and much. thank you very much for joining us. Thank you today. to you and your very much. viewers. Thank you very much. चलिए बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में हमने दबाव देखा। निफ्टी 44 अंकों की कमजोरी के साथ 17,516 के स्तर पे बंद हुआ है। सेंसेक्स में भी 143 अंकों की गिरावट हमने देखी है। निफ्टी 220 अंक से ज़्यादा टूटा है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो चाल कैसी रही है, तमाम डिटेल्स आज के कारोबार को लेकर सहयोगी पूजा त्रिपाठी बता रही हैं। हफ्ते के आखिरी दिन आज दिन भर उतार चढ़ाव देखने के बाद गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। निफ्टी करीब 44 अंक नीचे, सेंसेक्स में 140 अंकों की गिरावट देखी गई और बैंक निफ्टी में भी करीब 221 अंकों की गिरावट देखी गई है। और इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि नतीजों का असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। अगर वीकली गेन्स की बात करें तो निफ्टी में करीब 2% की मजबूती दिखी, सेंसेक्स में भी करीब 2.5% की मजबूती दिखी और मिड कैप और स्मॉल कैप भी करीब 2% की मजबूती के साथ ये सभी इंडेक्स कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा इस पूरे हफ्ते जहां पर शानदार तेजी दिखी है वो है मेटल इंडेक्स। 6.5% की तेजी मेटल में देखी गई। वहीं कमजोर साइड पे ऑयल एंड गैस जो थे वहां पर नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। इसके अलावा सरकारी कंपनियों में भी नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला। लेकिन वहीं मेटल और हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस में शानदार तेजी इस पूरे हफ्ते हमने देखी है। निफ्टी में अगर गेनर्स की बात करें तो टॉप पर है डीवीज लैब। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो 10% का रिटर्न दिया। टाटा स्टील ने 8% का, सन फार्मा में भी करीब 8% का और HCL टेक और ITC लिमिटेड भी अच्छी मजबूती के साथ क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन इस पूरे हफ्ते जो कमजोर थे वो थे NTPC का स्टॉक 4% नीचे, महिंद्रा 3% की कमजोरी थी। SBI लाइफ इंश्योरेंस और UPL में भी कमजोरी देखने को मिली। मिड कैप के वीकली परफॉर्मेंस पर अगर नजर डालें तो सबसे टॉप पर था धानी सर्विसेज। हमने देखा कल भी शानदार तेजी थी और आज की क्लोजिंग को भी अगर मिला लें तो 14% का रिटर्न स्टॉक ने दिया। उसके बाद इंडियन बैंक, APL अपोलो, हिंदुस्तान कॉपर, सुमितोमो केमिकल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि जिन्होंने 10 से 14% का रिटर्न दिया। वही लूजिंग साइड पर अगर देखेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, अल्काइल एमाइंस, बाटा इंडिया, कांसाइन एरोलेक और बेयर क्रॉप साइंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। और मिड कैप में टॉप लूजर था गोदरेज प्रॉपर्टीज। अगर पूरे वीकली रिटर्न की बात करें तो करीब 7 से 7.5% का नेगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज भारतीय बाजार पर काफ़ी बुलिश है और उनका मानना है कि सेंसेक्स अगले 5 साल में 1 लाख का स्तर छू सकता है। इस पर और डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय बाजार पर जेफरीज के क्रिस वुड ने दमदार भरोसा जताया है और दमदार टारगेट्स यहाँ पर उन्होंने भारतीय बाजार पर दिए हैं। जी हाँ, उनका मानना है कि अगले 5 साल में सेंसेक्स जो है 1 लाख तक के स्तर छूने का दमखम रखता है। आपको बता दें अपनी एनालिसिस में जो करंट रिजल्ट सीजन चल रहा है, अर्निंग्स जो दमदार आते हुए दिख रहे हैं, उसे मद्देनजर रखते हुए अपनी रिसर्च उन्होंने जारी की है। और अगर इन लेवल्स को 1 लाख के तक के स्तर को देखें तो मौजूदा लेवल्स जो हैं उनसे 60 से 70% तक की अपसाइड जो है वो मानकर चल रहे हैं कि भारतीय बाजार देख सकता है। ग्रीड एंड फेयर नोट में 5 साल के लिए 15% EPS ग्रोथ ट्रेंड के हिसाब से लक्ष्य उन्होंने दिए हैं और साथ
साथ ही अपने नोट में खास तौर से उन्होंने ये भारतीय बाजार पर अपना भरोसा जताया, कहा है कि भारत जो है हमेशा के लिए ग्रोथ निवेशकों के लिए एक बेहतरीन मार्केट है और करंट लेवल्स को भी देखते हुए हर गिरावट में भारतीय बाजार में निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है। ग्रोथ ओरिएंटेड इक्विटी के तौर पर सबसे अच्छा विकल्प भारतीय बाजार को उन्होंने माना है और साथ ही आपको बता दें कि खास तौर से हाउसिंग और रियल एस्टेट पर फोकस करते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर से काफी हद तक भारतीय बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि 7 साल के डाउन ट्रेंड के बाद कमबैक जो हाउसिंग सेक्टर ने किया है उसका एक इम्पैक्ट है जो कि पॉजिटिवली भारतीय बाजार पर पड़ता हुआ दिखेगा। तो ये तो तमाम पॉजिटिव चीजें, लेकिन साथ ही 2 कंसर्न्स भी हैं जो कि अपने नोट में उन्होंने जारी की है। एक तो यूएस फेड की टाइटनिंग, उनका ये भी कहना है कि यूएस फेड के ब्याज दरों पर फैसलों का असर जो है बाजार पर पड़ता हुआ दिख सकता है, दिखने की संभावना है। और दूसरा है जो ऑयल प्राइसेस हैं, लगातार हाई फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन करने के चलते भारत की स्थिति बेहतर है, लेकिन ऑयल प्राइसेस में जो ट्रेंड चल रहा है उसका भी एक इम्पैक्ट है जो कि एज अ कंसर्न बाजार पर दिख सकता है। लेकिन ऑल इन ऑल भरोसा भारतीय बाजार पर जेफरीज के क्रिस वुड का कायम है और दमदार बड़े टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। टाइटन के तिमाही नतीजों के बाद कंपनी के एमडी सीके वेंकटरमण ने ईटी नाउ स्वदेश से बातचीत में कहा है कि फेस्टिव सीजन में दमदार बिक्री हुई है। उनके मुताबिक टाइटन और तनिष्क पर कस्टमर्स को काफी भरोसा है। करीब 120 बिलियन डॉलर्स मतलब 7 लाख करोड़ का इंडियन हाउस होल्ड्स ने बचा के रखे हैं, क्योंकि दोनों साल घर में बैठे थे, सोशलाइजिंग बहुत कम किए हैं, तो उसका जो भी बचत उसमें है उसका अवेलेबल है फंड्स। दूसरा ये है कि ये 2 साल में स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन का करीब 1.5 साल का इंप्रूवमेंट इंक्रीज हो चुका है, मतलब 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इंप्रूवमेंट हो चुका है। इसका वेल्थ इफेक्ट जो हम कहेंगे उसका असर भी बहुत पड़ेगा। और टाइटन कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि हमने करीब 2000 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हमारे हैं, जिसके थ्रू करीब 85% कंपनी का रेवेन्यू ये एक्सक्लूसिव आउटलेट्स के थ्रू आता है। और इस एक्सक्लूसिव आउटलेट्स में करीब 15,000 सेल्स स्टाफ काम करते हैं और करीब 1000 फ्रेंचाइजीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इनका रिलेशनशिप जो 20 मिलियन का हमारा एनसर्कल जो लॉयल्टी प्रोग्राम है उसका कस्टमर बेस है 20 मिलियन का, तो ये 15,000 स्टाफ और ये 20 मिलियन कस्टमर के बीच जो रिलेशनशिप बन चुका है सालों से, उसका वो ताकत है। बाकी कई कंपनीज में वो एडवांटेज नहीं है। चलिए, बाजार के जानकार क्या कह रहे हैं। डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के विनीत सामरे ने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर के चुनिंदा शेयरों और हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश के काफी बेहतर मौके हैं। एक तो है कि स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स कौन से सेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के साथ साथ विजिबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है, और ये होना बहुत जरूरी है। आज के माहौल में हम लोग देखते हैं कि डिसरप्शन हर जगह हो रही है, सेक्टर के साइकिल शॉर्ट हो चुके हैं, तो ये बहुत ही इस टाइप का रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जबकि कई बार रिस्क ऐसी इमर्ज होती है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आई थिंक 2 चीजें मद्देनजर रखने जैसी, एक तो है विजिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, दूसरा है वैल्यूएशंस। इन 2 पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए मैं ये कहूंगा कि जो एक तो बैंकिंग सेक्टर है जो अब स्लो साइकिल से उभर रहा है, वहां पे वैल्यूएशंस भी ठीक हैं, और जैसे इकोनॉमी ग्रोथ होगी तो ये सेक्टर जो है ग्रो होगा। कई सारे प्रेशर जो हम आज देख रहे हैं कई सेक्टर्स में, मार्जिन प्रेशर, वो यहाँ पे होपफुली हमको बैंकिंग सेक्टर में अब नहीं देखने को मिले, और उनकी जो क्रेडिट कॉस्ट की जो रिस्क थी, एसेट क्वालिटी की जो रिस्क थी, वो भी अब ठीक हो रही है। सो एक ये सेक्टर है जहां मुझे लगता है कि आउटलुक अच्छा है और वन नीड्स टू बी प्रेजेंट इन सिलेक्टिव बैंक्स। दूसरा जो सेगमेंट है जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेशकों को बने रहना चाहिए, वो है हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इट इज लाइक सेमी एफएमसीजी, जहाँ पे ग्रोथ आती रहेगी, बीमारियां और एज फैक्टर जो है
वो ये सुनिश्चित करेगा कि इसमें ग्रोथ आती रहे और इंडियन कंपनीज को एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिली है। तो इंडिया से सप्लाईज ग्लोबली जाते हैं, जो कि आज चाइना भी नहीं कर पा रहा है। अदानी ट्रांसमिशन के एमडी और सीईओ अनिल सरदाना के मुताबिक कंपनी के ट्रांसमिशन और रिटेल बिजनेस में बेहतर ग्रोथ है और साथ ही कंपनी के आय और मुनाफे में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अडानी ट्रांसमिशन के लिए दोनों जो बिजनेसेस हैं, ट्रांसमिशन बिजनेस जो कि बल्क एक बिजनेस है और दूसरा बिजनेस है रिटेल वाला, जहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस करते हैं। पहले हम लोग मुंबई का बिजनेस एक्वायर किया हम लोगों ने, और अभी रिसेंटली हमने मुंद्रा में डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एक्वायर किया। सो दोनों एंड्स पर ये जो बिजनेसेस के पार्ट हैं, ये दोनों ग्रोथ बिजनेसेस हैं। हम लोग 15% CAGR ग्रोथ अभी तक रजिस्टर करते आए हैं और हमारा ये रहेगा कि हम आगे भी इसी तरह की ग्रोथ को मेंटेन करें। और ये ग्रोथ आती है कैपेक्स से। तो अगर आप देखेंगे, हम लोगों ने 5,000 करोड़ का ग्रोथ कैपेक्स जो है वो प्रोजेक्ट किया था साल के लिए, और हमें खुशी है कि हमने 9 महीने में ही ये ग्रोथ का टारगेट अचीव कर लिया है। और हम लोग इस साल में पूरे साल में 6,000 करोड़ से ऊपर कैपेक्स कर पाएंगे। सो इसके कारण रेवेन्यू में ग्रोथ आया है। आपने जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात की, वो प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली भी 14% से ग्रो हुई है, लेकिन वन ऑफ आइटम्स जो कि नॉन कैश आइटम्स हैं ज़्यादातर, जैसे मार्क टू मार्केट या डिफर्ड टैक्स एसेट्स क्रिएट करना, उसके कारण ये फिगर जो नीचे दिखती है वो कम हुई है। बट अगर आप कैश प्रॉफिट देखेंगे तो कैश प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इजाफा हुआ है। आगे बढ़ते हुए पीवीआर ने गुरुग्राम में 8 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए M3M के साथ करार किया है। हमारी सहयोगी दानिश आनंद ने पीवीआर के जॉइंट MD संजीव कुमार बिजली से खास बातचीत की। Could you tell us more about the new cinema that will come up in Gurgaon? How many screens are going to be there, and what are your plans for that particular cinema? We have about 8 screens, and 8 screens is going to be multiple formats. So far, we have planned to have 2 Lux auditoriums, which are the high-end auditoriums. We are planning on having a 4DX screen, which is the one where all the senses move and all the seats move. And a large screen format with about 10 meters or 11 meters height, which will be our PXL format. So going forward, can we expect PVR to tie up more with M3M so that there will be more future collaborations? Like, it is just Gurgaon as of now, but apart from Gurgaon, any other areas within Delhi NCR that are under your radar? Yes, we're always open to that, and I think in our business what is important is to have a good relationship and a good rapport with the developers, because of course they're the ones who give us a space in the right location. They're the ones who build good developments and malls, and if you are able to click and if you're able to find a good working relationship with them, then why not? We've always had a history and an experience of working with the same set of developers over the last 20 years, because we've formed that relationship and respect for each other. चलिए रुकेंगे स्वदेश आर में छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें भी और भी हैं, बने रहें। टाटा स्टील ने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और नतीजे उम्मीद से काफ़ी बेहतर भी रहे हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स, हमारी सहयोगी आशीषा बता रही हैं। जी हाँ, टाटा स्टील के नंबर्स हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आए हैं। हम एक सिक्वेंशियल डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज इस क्वार्टर में कोकिंग कोल जो उनका मेन रॉ मटेरियल होता है, उनके प्राइसेस बढ़ रहे थे और स्टील प्राइसेस भी वीक थे। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 60,783 करोड़ के आसपास आया है, जो 0.6 मार्जिनल इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एबिडा 15,893 करोड़ पे आया है, जो 3.4% का डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एबिडा मार्जिन में हमने 110 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23.7% से डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर नंबर्स की बात करें तो डेफिनेटली हमने एक इंप्रूवमेंट देखा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस क्वार्टर में रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने के कारण हमने एक डिक्लाइन देखा। एबिटा पर टन, जैसे मैंने कहा, इस क्वार्टर में इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा थे और स्टील प्राइसेस भी वीक थे, उसके कारण एबिटा पर टन 2,100 रुपीज पर टन से डिक्लाइन हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कल आने वाले एसबीआई के तिमाही नतीजों की और अनुमान क्या कहते हैं हमारे सहयोगी हर्ष बता रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने क्वार्टर 3 FY22 के रिजल्ट्स देने को तैयार वीकेंड में, और हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रीट से अपेक्षा क्या है क्वार्टर 3 के रिजल्ट से। नेट इंटरेस्ट इनकम प्रिटी मच जो भी क्वार्टर 2 में आया उसके ही आसपास आएगा, 31,200 करोड़ के थोड़े आगे पीछे 8% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पर जो पीपीओपी है उसमें काफी अच्छा बढ़ान आएगा, 7.5+% सिक्वेंशली और 12.5% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ वो नंबर दिखाएगा, और अब वो 19,500 करोड़ के आसपास वो नंबर आएगा। और पैट में भी अच्छा ग्रोथ आएगा, 7.5% पैट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्रोविजंस थोड़े लोअर आएंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो, और पैट जब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो उसमें 58% का बढ़ान आने की संभावना है ब्रॉडली, और वो 8,200 करोड़ के आसपास आने की अपेक्षा है स्ट्रीट की। ग्रॉस एनपीएस को देखा जाए तो वो अराउंड 0.2% से कम आएंगे, और नेट एनपीएस 0.1% से कम आएंगे सिक्वेंशियल बेसिस पे देखा जाए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो। और जो कंप्यूटेड निम्स है वो 3.1 और 3.2% के बीच में आएंगे ब्रॉडली, वही नंबर एक्सपेक्टेड है। और बैलेंस शीट के साइड से जब हम एडवांसेस और डिपॉजिट साइड दोनों अच्छी ग्रोथ बताएंगे, एडवांसेस 3.5% प्लस ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रो होंगे, ऑलमोस्ट 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ दिखाएगा एडवांसेस नंबर। डिपॉजिट्स में भी 2% सिक्वेंशियल ग्रोथ आने की संभावना है, 10% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और वो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो 2% है उसमें काफी अच्छा प्रभाव कासा रेशो का, तो कासा रेशो भी अच्छा इंप्रूव होगा, ऑलमोस्ट 0.2% से कासा रेशो इंप्रूव होगा, ब्रॉडली 45% के आसपास आएगा। अब हम मैनेजमेंट की कमेंट्री देखा जाए तो मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन एसेट क्वालिटी स्पेशली रिटेल और कॉर्पोरेट बुक के साइड से वो इंपॉर्टेंट होगा, और जो लार्ज कॉर्पोरेट का ग्रोथ है, केपेक्स साइकिल का पिकअप है, उसकी कमेंट्री सुनने की अच्छी लगेगी। रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। बजट में ऐलान के बाद अगले 5 महीने में सरकार SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए नए कानून लाने जा रही है। मौजूदा कानून और नियमों में बड़े बदलाव किए जाएंगे। नए कानून की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, इसमें क्या बड़े बदलाव होंगे, जानने के लिए देखिए प्रकाश प्रियदर्शी की ये खास रिपोर्ट। इस साल जुलाई तक SEZ के कानून में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। बजट में नए कानून की घोषणा के बाद क्या बदलाव होंगे, इसे समझें। इससे पहले ये जानते हैं कि पिछले 16 सालों में SEZ का सफर कैसा रहा। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2005 और 6 के दौरान SEZ से करीब $3 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, जो साल 2020-21 तक बढ़कर $102 बिलियन के करीब जा पहुंचा। उसी तरह पिछले 16 सालों में निवेश करीब $0.5 बिलियन से बढ़कर किसी तरह करीब $83 बिलियन के आसपास पहुंच गया। SEZ में जहां तक नौकरियों का सवाल है तो यहां काम करने वाली कंपनियों में साल 2005 में करीब 1,34,000 लोग काम करते थे, जो साल 2020-21 में बढ़कर 23,58,000 के करीब हो गए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो SEZ से एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद तो मिली है, पर ग्रोथ की रफ्तार उतनी नहीं रही जितनी उम्मीद की गई थी, जबकि इतने ही वक्त में कई देशों में ऐसी व्यवस्था से काफी फायदा हुआ है। अभी जो गवर्नमेंट ने कहा है बदलाव का, ये बदलाव आना बहुत जरूरी है अगर इनको सस्टेन करना है तो। नहीं तो ये लोगों ने बस एक जमीन के हिसाब से लेके रखी हुई है और ये रियल एस्टेट जैसे हो जाएगा, तो ये आएगा तो इसके अंदर जेन्युइनली फैक्ट्रियां आएगी। जानकारी के हिसाब से SEZ का नया रूप एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। घरेलू इंडस्ट्री को भी SEZ की बनी बनाई सुविधाएं मिलेंगी। इतना ही नहीं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया को भी बराबर का मार्केट मिले, इसके लिए SEZ यूनिट पर इक्वलाइजेशन लेवी लगाने की भी योजना बनाई जा रही है। एक्सपोर्ट यूनिट को ये भी छूट मिल सकती है कि अतिरिक्त ड्यूटी चुकाए बगैर घरेलू बाजार में भी अपने सामान बेच सकती है। SEZ यूनिट के लिए डोमेस्टिक करेंसी में पेमेंट लाने की सुविधा दी जा सकती है। इंडस्ट्री की माने तो SEZ के लिए कंप्लायंस के बोझ को कम करने की जरूरत है। कंप्लायंस का जो बर्डन है वो बहुत हैवी है और बहुत एक्सपेंसिव है। इतना सब पेपर वर्क करना वहां पर और इतना सब कंप्लाई करना वो बहुत मुश्किल है। पहले तो आदमी उसी से वो घबरा जाता है और वो बहुत मुश्किल हो जाती है, कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये टैक्स हॉलिडे जो है वो होनी चाहिए।
इसमें कोई एसईजेड के अंदर कोई भी तरह का टैक्स लगाना ये वायबल हो जाता है। 5 साल के बाद में फिर लोग क्या करेंगे कि 5 साल कंपनी चला के और फिर उसको बंद करने की सोचेंगे, तो उससे क्या फायदा होगा? वो तो एक नेगेटिव स्टेप हो जाएगा। नए कानून के तहत सरकार टैक्स छूट की अवधि खत्म होने के बाद एसईजेड यूनिट को साधारण एरिया की तरह काम करने की इजाजत दे सकती है। साथ ही कंपनियों को एसईजेड में दूसरी गतिविधियां करने की भी इजाजत मिल सकती है। प्रकाश प्रियदर्शी, ईटी नाउ स्वदेश। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद मनी मंत्रा, बने रहें। Knowledge partner Deloitte. Co-powered by ET Money. Invest in freedom to choose. Download the app. Co-powered by the all-new Thar. Explore the impossible. Banking partner Bandhan Bank. In association with Sundaram Mutual, unearthing opportunities. In association with Capri Global Capital Limited. चुनौतियां तो हर बिजनेस में आती हैं, मगर काबू वही पाते हैं जिनके पास होती है पक्की रणनीति। हम देंगे आपको ऐसा नजरिया जिससे बिजनेस करना होगा बेहद आसान। शेयर करेंगे ऐसे आइडियाज जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जो भरेंगे आपके पोर्टफोलियो में जान। भारत की तरक्की में अब बढ़ेगी आपकी भागीदारी। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। सेविंग्स अकाउंट से बिजनेस लोन्स तक, इंश्योरेंस से होम लोन्स तक, हम करते हैं सभी जरूरतें पूरी। चंडीगढ़ से चेन्नई तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, हम हैं आपके लिए उपस्थित। अपनी ब्रांचेस से आपके डोर स्टेप तक, फोन बैंकिंग से नेट बैंकिंग तक, आप चुने अपना जरिया। म्यूचुअल फंड से गोल्ड लोन्स तक, फिक्स डिपॉजिट से पर्सनल लोन्स तक, बंधन बैंक देता है सभी के लिए संपूर्ण बैंकिंग सुविधाएं। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। हर बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है नींव और भरोसा। और बात जब आम लोगों से कैपिटल मार्केट में पूंजी लगाने की हो तो एक्सचेंज इस भरोसे की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वह नींव बना चुका है जिस पर भारतीय कैपिटल मार्केट मजबूती से खड़ा हुआ है, चाहे बात नियमों के सही पालन करने की हो या ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की हो। आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक ग्लोबल लीडर बन चुका है। भारतीय कैपिटल मार्केट सेफ है और सुरक्षित। फिर नहीं तारीख, कोर्ट कचहरी का मैटर है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। ये जनाब घुमा फिरा कर सिर्फ आपसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। आपकी परवाह करने वाले करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। सेविंग्स अकाउंट से बिजनेस लोन्स तक, इंश्योरेंस से होम लोन्स तक, हम करते हैं सभी जरूरतें पूरी। चंडीगढ़ से चेन्नई तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, हम हैं आपके लिए उपस्थित। अपनी ब्रांचेस से आपके डोर स्टेप तक, फोन बैंकिंग से नेट बैंकिंग तक, आप चुने अपना जरिया। म्यूचुअल फंड से गोल्ड लोन्स तक, फिक्स डिपॉजिट से पर्सनल लोन्स तक, बंधन बैंक देता है सभी के लिए संपूर्ण बैंकिंग सुविधाएं। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। Do you think that actually the stock market is like the way it's projected to be? The stock market is a requirement of this country. Yeah. Right? And see, just as in any field, there are manipulators, there are good people. Right. It's a place where people have to save money. It's a medium it's a medium by which money goes from savers to users. Yeah. And I will personally advise you that you should invest a good amount of your money into the stock market. एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ ब्याज दरें बढ़ने की भी संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं। अब ऐसे में आपके डेट पोर्टफोलियो में क्या रणनीति आप बनाएंगे, बताते हैं आपको मनी मंत्रा में। Good evening and thanks so much for tuning in.
to this special broadcast between ET Now and ET Now Swadesh. This is the weekly Jugalbandi episode of The Money Show and Money Mantra. My name is Alex Matthew and with me is Kavita Thapliyal. Kavita, always a pleasure doing a show with you. But you know, not a lot of people look at the bond market here in India. A lot of focus is given to the equity markets. But if you look at the bond yields, there's a story that they will tell. And if you look at the bond yields over the last few weeks, you'll have noticed that they're heading upwards. In fact, after the presentation of the budget and this week, you had the yield on the 10-year government bond hit 6.9%. And what that means is that the government of India is borrowing for 10 years at a rate that is higher than what you would get on an HDFC home loan. Why is this happening? And what does it mean for your finances? That is what we're going to find out this week, Kavita. बिल्कुल आसान भाषा में मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो कैसे आपकी जो फिक्स्ड इनकम की कमाई है वो आगे चलकर बढ़ेगी या उस पर किस तरह से असर पड़ेगा। आपको अपने निवेश और कर्ज में इस तरह की बॉन्ड यील्ड्स के इजाफे पर तालमेल बैठाना है। अपने पोर्टफोलियो में क्या डेट निवेश को लेकर किसी भी तरह की तब्दीली करनी है, क्या हाई लॉक इन इंटरेस्ट रेट पर आपको तवज्जो देना चाहिए मौजूदा समय में, इस पूरे समीकरण को हम समझने की कोशिश करेंगे इस आज की पेशकश द्वारा। और मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करना चाहती हूं क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर CEO कीर्तन शाह का, और साथ ही हमारे साथ CFP पूनम रुंगटा भी जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। पूनम, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। हम जानते हैं भारत में बहुत सारे लोग आज भी फिक्स्ड डिपॉजिट की ओर बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम छोटी बचत योजनाओं की बात करें तो उसमें भी काफ़ी हद तक लोगों की दिलचस्पी होती है, क्योंकि हम अक्सर क्योंकि हम शेयर मार्केट की बातें करते हैं, इक्विटी में निवेश की बात करते हैं, अभी भी पेनिट्रेशन यहाँ पर बहुत कम है FD के मुकाबले, FD में निवेश के आंकड़ों के मुकाबले। लेकिन अब जिस तरह हमेशा हम लोगों को समझाते हैं कि जब बॉन्ड यील्ड्स में आपको बदलाव आता हुआ देखता है, इनकी कीमतों में आपको जब बदलाव आता हुआ दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं समय आ जाता है कि आप उम्दा ब्याज दरों पर, ऊंची ब्याज दरों पर अपने पैसों को लॉक करने की कवायद शुरू कर दें। जिस तरह से डायरेक्शनली हम इंटरेस्ट रेट के लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं इस देश में, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि मौजूदा समय में फिक्स्ड डिपॉजिट या अगर मैं डेट निवेश की बात करना चाहूँ उसकी ओर रुझान बढ़ाना चाहिए? अपने पोर्टफोलियो में रीबैलेंस करने का क्या समय आ गया है डेट निवेश के लिहाज से? कविता, ये जो आपने बात कही है कि इंटरेस्ट रेट यील्ड्स जो बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से जो बॉन्ड मार्केट का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स होता है, यानी अगर यील्ड बढ़ती है तो बॉन्ड के प्राइसेस कम होते हैं। इससे जो डायरेक्टली बॉन्ड में निवेश करते हैं उनके को रिटर्न्स नेगेटिव देखने को मिलते हैं। और वहीं आप बैंक्स की बात करें तो बैंक जो फिक्स इंटरेस्ट देता है उन्हें एक स्प्रेड मेंटेन करना होता है बिटवीन लेंडिंग एंड बोरोइंग के बीच में, इसलिए वो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड का रुख करते हैं डेट निवेश के लिए, उन्हें बिल्कुल ये समझना चाहिए कि अगले 3 से 6 महीने तक जब तक इंटरेस्ट रेट यील्ड स्टेबलाइज नहीं हो जाती, वो लोग नेगेटिव या काफी लो रिटर्न्स देख सकते हैं। तो उन्हें अभी डेट म्यूचुअल फंड से अपना रुख हटा देना चाहिए फॉर द टाइम बिंग, और लिक्विड या आर्बिट्राज टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट मतलब अपना पैसा पार्क करना चाहिए, ताकि उन्हें जो भी वोलेटिलिटी है डेट मार्केट्स की उसको वो उससे बच पाएं। और इसके अगेंस्ट अगर बैंक FDs की बात करें तो उधर नेचुरली अभी रिवाइज हो रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स, तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलने की गुंजाइश है, क्योंकि वहां जो स्प्रेड मेंटेन करना है उसकी वजह से निवेशकों को वहां ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने डेट निवेश को इस वक्त देखना चाहिए, बिकॉज यहाँ वोलेटिलिटी इक्विटी मार्केट के ही हिसाब से काफी ऊंची नीची चल रही है। Very well put. But you know, before we get into strategies, Poonam as well as Kirtan, I want to get into the why of it. Why are bond yields suddenly going up? And not just in India, right, Kirtan? You're seeing bond yields in the US also that are climbing. And in fact, a large part of the impact on equity markets is being viewed as the increase in bond yield. So why is the bond yield in India going up? Alex, thank you so much for having me on the show.
So Alex, if we go back slightly more to the start of where the pandemic started, right? Typically, you would see that in any of these crises, a lot of liquidity is pumped in the market. To give you a little stat, Fed pumped in this time around in this crisis 5 times more money than it actually put in during the 2008 crisis. So much of money is flooded in the system. Interest rates were got down to zero, right? This typically was done so that demand could revive. And that is exactly what happened. When so much of money was infused in the system, demand actually revived. But because this was also coupled by supply chain disruption because of COVID, both of these things together, too much of liquidity in the market and also demand supply mismatch or supply chain disruption because of COVID, actually led to prices of commodities actually move up. So to a larger part, globally, everybody was expecting that this inflation is transitory in nature, because as soon as COVID situation is taken care of, your supply chain will come back and hence inflation would come down. But if you notice over the last 3 months, globally, all central banks have started accepting that this inflation that we are seeing is actually demand pulled inflation because of too much of liquidity being infused in the system. And it is not transitory, which they originally anticipated because of the supply chain disruption. So now if you see globally, most of these large economies are all having inflation today at their decade highs, right? And inflation theoretically as well as practically is not really very good for economy beyond a certain point, right? So to control inflation, I think globally interest rates will have to go up, and also so much of liquidity that was infused in the system will have to be got down. So if you see Bank of England has already raised interest rate twice. You've seen Fed also come out and tell you that probably in 2022 they will increase rates 4 times. And I don't see a reason why India will say stay out of this in any ways, right? So you've already seen, like you rightly mentioned in your starting note, that we've already seen the 10-year reach 6.9 odd yield already. I don't see a reason why we will really be able to sustain in such a global inflationary situation without rates going up. In my opinion, rates in India will also soon start moving up, Alex. Thank you so much for taking the time. From Kavita and myself and the team that put this show together, thank you so much for watching. Do stay tuned. Lots more coming up over the course of this evening. And this is ET Now. खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही कई पाबंदियों में ढील दी गई है। डीडीएमए की बैठक में राजधानी में स्कूल, कॉलेजेस और जिम खोलने को लेकर सहमति बनी है। इसके अलावा ऑफिसेज में भी 100% क्षमता के साथ काम करने की इजाज़त दी गई है। राजधानी में स्कूल फेज वाइज खोले जाएंगे। सबसे पहले 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैसले इसलिए लिए गए ताकि कोविड केस अब धीरे धीरे जैसे कम हो रहे हैं तो ज़िंदगी पटरी पे लौटे, लोगों का व्यापार भी आगे बढ़े और पढ़ाई भी आगे बढ़े। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि स्कूल खुल जाएंगे। 7 तारीख से स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 7 से खुल जाएंगे और नर्सरी से 8वीं के स्कूल 14 फरवरी से खुल जाएंगे। स्कूल में अभी हाइब्रिड क्लासेस ही रहेंगी, ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑफलाइन भी चलेगी। लेकिन कॉलेजेस मंडे से खुल जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि बीजेपी यूपी में इस बार भी 300 सीट जीतेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से नामांकन दाखिल करने के मौके पर आयोजित मेगा शो में अमित शाह ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी के साथ है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये पहला मौका था जब अमित शाह किसी के नामांकन में शामिल हुए। नामांकन से पहले सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में हवन पूजन और अर्चना की। इसके साथ ही योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है और सबको सुरक्षा की गारंटी दी है। 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री के रूप में आपने अपनी जब पारी प्रारंभ की तो उस पारी के रूप में
पहली सौगात दी थी और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का। विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार करने के लिए हमें मैंडेट दिया। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। चलिए इसी के साथ स्वदेश और में आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।